गुरु जी। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਆ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕੋ 'ਚ ਰਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਿੱਲ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਗਏ ਬਿੱਲ ਡੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਗਿਫਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸਵਾਰਥ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ, ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਨੇ ਬਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਛੂਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਤੇ ਪੱਤਝੜ ਵਿੱਚ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੜਖੜ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਖਿੜਦੇ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿੜਨਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਭਰਿਆਲੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਖੇਰੇ, ਪੱਤੇ ਬਖੇਰੇ, ਗੰਦ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰਾ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਜੀਵਨ ਚੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਦੰਦ, ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ, ਉਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਖੇੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਏ ਉਹ ਖਿੜਦਾ ਵੀ ਏ, ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ, ਕੁਝ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਅਧੂਰੇਪਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰਾ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਆਇਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁਹੱਪਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਹਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ, ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਨਹਿਰੀ, ਗੋਲਡਨ ਹੀ ਗੋਲਡਨ, ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਰਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
फिर अधूरा क्यों? अहीं जदों अधूरा चुनते हैं ना कि सानू इक्को पक्ष चाहिए है ना। जे बच्चा जिहड़ा है वो रोंदा चंगा हसदा चंगा लगता है तो रोंदा भी सोहना लगना चाहिए। जे वो कहना मनदा चंगा लगता है तो जिद करदा भी सोहना लगना चाहिए। हाँ, ये वक्री गल है कि उहदा जिहड़ा कर्म है उन्होंने सवारन वास्ते आप जी को समझ है, उन्होंने सवारन वास्ते गुरु ने बख्शी मत है, पर यह तो नहीं होना चाहिए कि सोहना नहीं लगना चाहिए। हुण कई बार घरां दे विच इदां हुंदा है कि अद्धे जीआं दी सोच एक हुंदी है कि आह काम इदां करना चाहिए, अद्धे जी सोचते ने नहीं करना चाहिए, जां एक जी कोई सोचता है नहीं करना चाहिए। हुण जिहड़ा सोचदा है नहीं करना चाहिए वो विचार करके तो फर्क है, पर वो भी बुरा थोड़ी चाहुंदा होएगा। जां जिहड़ा ये सोचदा होएगा करना चाहिए वो भी विचार करके तो फर्क है, दूजियां नाल सहमत नहीं। तो असीं ये करके गुस्सा करिए कि ये जिहड़ा है ना ये साडा कहना नहीं मनदा, तो इसदा मतलब ये ऑप्शन उहदे को भी है कि वह भी तुहाडे नाल गुस्सा करे कि तुसीं नहीं मेरा कहना मनदे। दोवें पासे सेम ही होएगा। जे तुहानूं लगदा है मेरा फैसला सही है, दूजे दा गलत है, दूजा जिहड़ा सही फैसला नहीं लै रहा, तो प्रोस्पैक्टिव ही जिहड़े आप जी की जिहड़ी विजन है उहदे च ही फर्क है। वो उन्होंने चंगा लगता है, इस करके उन्हें वो चुनिया है, जिहड़ा तुहानूं चंगा लगता है वो चुनिया। उहदे नाल नफरत क्यों? सवारना तो ठीक है, उन्होंने सवारना है, समझाउणा है, वो तो ठीक है, पर नफरत क्यों? क्योंकि ये अधूरे नूं चुनदे। असीं सिर्फ अपने स्वार्थ तक चुनिया है जो सानूं चंगा लगता। तो गुरु महाराज का जिहड़ा रंग है वो तो कुर्बानी का रंग है, वो तो बड़ा सुहप्पण का रंग है, वो तो सेवा का रंग है, समर्पण का रंग है। जे रुख जिहड़ा है उहनूं पानी पाउणा, घर दे विच रुख लाया है, फुल्लां दा बूटा लाया है, उहनूं पानी पाउणा सेवा है। तो जदों कल नूं उहदियां टाहणी टुट के घर दे विच डिगे खलारा पावे, उहनूं चुकना भी तो सेवा ही है। कल उन्हें पानी मंगिया ही कि मैनूं पानी पिया दे, अज उहदियां कुछ टाहणियां बजुर्ग हो गईयां, उन्हें वो सुट्टतियां कि हाले फड़ होर सेवा लै ला, तू पानी पाउणा है। पर उहनूं कमले नूं रुख नूं की पता कि असीं नकली सेवादार हैं। वो तो सानूं पानी दिंदा वेख के सोचता होएगा ना कि असीं सेवादार बड़े वधिया आ, तो फिर टाणी भी सुट दिंदा होएगा कि चल हाले होर सेवा कर ला, तू सेवा बड़ी वधिया करदा। उन्होंने की पता ही कि उन्होंने जे ज़्यादा टाहणियां सुट्टी तो हौली जी ही रोकी वड्ड दिने कि यार ये बहुत गंद पाउंदा, ये पत्ते बहुत खलारदा वेड़े च। अधूरे नूं नहीं चुनना। तो उन्होंने गुरसिख नूं समझा रहे हैं कि अधूरा जे चुनना है तो फिर गड़बड़े, फिर लड़ाइयाँ रहणगियां, झगड़े रहणगे। जे तैनूं प्रेम चाहिदा है तो फिर तैनूं रोसे भी चाहिए ने। जे तैनूं प्रेम च खुशी है तो तैनूं रोसियां च भी खुशी चाहिए। गुरु नानक महाराज की बात करिए तो बड़ा सीधा जिहा खेड है कि वह पूरे दा कीता सब कुछ पूरा है, उहदी रचना है बस, तो वो ही रच के बैठा है। जे उहदी रचना जिहड़ी वो रच के बैठा है, अज उहदे च उहदी रचना चों उहदी जोत चों जिहड़ी जात मैं जोत है, अज तैनूं लाड करदा गल वकड़ी पाउंदा तो किसी दूजे च तैनूं जिहड़ा है वो गुस्से भी होएगा, झिड़क भी मारेगा। तो जे रचना नूं समझ के चलीए कि वह प्यारा रच के बैठा है, उहदी लीला है, तो कितनी सुंदरता होएगी, कदी झगड़ा होएगा। हुण तुसीं ध्यान नाल सोच के वेखो, दुख परमात्मा ने पैदा किया है। बड़े लोग सोचते हैं कि जे परमात्मा, कई इस गल्लों नास्तिक हो जाते कमले, कई साडे भैन भरा इदां दे ने वो नास्तिक हो जाते इस गल्लों कि जे रब हुंदा तो इन्ना दुख क्यों हुंदा, जे इन्ना दुख है तो रब नहीं हो सकता। पर हुण सवाल बनता है कि दुख इस करके है कि रब आ, जां दुख इस करके है कि असीं कुछ अधूरा चुनिया आ। दो चीज़ां ने, धुप्प ते छां है। तो सतगुरु के एक बोल बड़े सोहने लगते हुंदे ही, वो कहंदे धुप्प ते छां इक्को ही है, दिन ते रात इक्को ही है। वो कहंदे उहदे च ही दिन समाया है, उहदे च ही रात समाई है। दिन में रैण, रैण में दिनियर,
कि दिन च ही रात है, रात च ही दिन है। धुप्प है, धुप्प का परछावां रात है, धुप्प तो जिहड़ा परछावां बनता है वो रात है। हुण भी तो दिन ही है, धुप्प है, पर इस वेले वो धरती के दूजे पासे चली गई तो उस धुप्प का जिहड़ा परछावां है वो इधर इन्हां देशां ते आ गया तो असीं कहने रात हो गई। तो जे असीं ये इक्को दे दो रंग ने, हर जगह ते इदां दो रंग मिलणगे, तो जे असीं धुप्प नूं चुन लईए जां छां नूं चुन लईए कि छां चंगी लगदी मैनूं ते धुप्प जिहड़ी वो अपने आप बुरी हो जानी। जे छां नूं सुख मान लिया कि मैनूं कल्ली छां ही चंगी लगदी, छां मेरा सुख है, तो धुप्प दुख हो जाना कि नहीं हो जाना। दसवें पातशाह नूं कदी वेखीए वो कहंदे नमो तेज तेजे नमो अंधकारे, कि हे तेज प्रताप, हे प्रकाश रूप, तेरे तेनों भी नमस्कार है, ते हे अंधकार च समाए होए तेनों भी नमस्कार है। असीं अधूरा चुनते हैं, अद्धा चुनते हैं, बस वो रौला है, अधूरे का रौला है। अज जिन्ना पति पत्नियां दे झगड़े होंदे ना, बस अधूरा चुनिया है, नहीं तो झगड़े नूं कोई जगह नहीं। परिवारां च झगड़े होंदे हैं, ध्यान ना वेखोगे कुछ अधूरा चुनिया है, पूरा नहीं चुनिया। ते सतगुरु दे बोल बड़े प्यारे ने, इन्हां नूं संभाल के रखना अपनी जिंदगी। कुछ सतगुरु दे इदां दे स्वरूप ने शब्दां दे कि वो संभालने ने, बस समझने ने ते संभालने ने, बस पूरे का किया सब कुछ पूरा, घट वध किछ ना है, इनू सिर्फ संभाल ही लो ना अपनी जिंदगी च भी। पूरे ने जो किया है पूरा है, बस अधूरा नहीं है। गड़बड़ मेरे च मैं कुछ अधूरा चुन रहा है, बस होर कोई दिक्कत नहीं है। तो तुहाडी जिंदगी च कदी जिहड़ा है वो दुख नहीं आ सकता, कि आएगा। हुण वेखो माँ दे विचों असीं चंगी चंगी माँ चुन लीए कि आ माँ रोटी दिंदी, आ माँ लाड करदी, आ माँ सिर पलोसदी, आ माँ मत्था चुमदी, ते जिहड़ी माँ झिड़कां मारदी वो चुनीए ना, ते इहदा मतलब है तुसीं माँ नहीं चुनी, स्वार्थ चुनिया है। जे माँ नूं चुनदे ते माँ दा जिहड़ा ही वो मत्था चुम्मना भी चंगा लगना ही, माँ दा थप्पड़ मारना भी चंगा लगना है, क्योंकि माँ नूं चुनिया है। हुण असीं पत्नी नूं चुन लैने, पर की पत्नी नूं चुनदे जां पत्नी दे विच स्वार्थां नूं चुनदे? पति नूं चुन लैने, कि पति नूं चुनदे जां पति दे विच सिर्फ स्वार्थां नूं चुनदे? धी नूं चुन लिया, पुੱਤ नूं चुन लिया, मित्र चुन लिया, सारा रौला ही है होए, बस अधूरे दा रौला है। रमज पकड़ चाही कि नहीं? पुੱਤ दे रमज पकड़ चाही कि थोड़ी थोड़ी? सपोज कर तू अपने पिता नूं चुनिया, तो हुण ये पिता दे विच चंगियाइयां भी ने बुराइयां भी ने, जिन्नी देर तक ये पार नहीं चले जाते दोवें मिलणगियां, धुप्प छां दोवें मिलणगियां। इन्हां दा पूरा की है कि जे बुराई भी आएगी चंगियाई भी आएगी। तो जे तू कल्ला चंगा चंगा चुन लिया तो फिर तू अपने स्वार्थ करके, अपने मतलब करके इन्हां चों कुछ चंगियां चीज़ां जिहड़े तेरे काम दियां ही वो चुन लईआं, तो बाकी कित्थे जावे? अधूरा चुनिया ना। फिर पूरे पिता नूं ते कदी नहीं चुनिया। तो जदों पूरे नूं नहीं चुनिया, जिहड़ा तैनूं नहीं चाहीदा वो दुखी करेगा ना, कि झिड़क मारदा, ये बिना वजह इदां करदा, ये बिना वजह मैनूं इदां करदा, होएगा ना। ये चीज़ जिहड़ी है पूरी खेडदी है, सारे रिश्तियां ते ला के वेख लो, सारी कायनात ते ला के वेख लो। यह करके असीं कहने आ कि जे सतगुरु कहंदे ने ना, उस पूरे ने सब कुछ जो बनाया है पूरा बनाया है, घट वध नहीं है। बस तू घट वध चुनिया ना कर, तो फिर कदी जिंदगी च दुख आएगा? सोच के देखो। सानू समझाया गया है फिल्मां दे जरिए जां आसे पासे लोग ध्यान ना किते उन्हां दीयां बातां सुनोगे, थोड़ी वो भैन बैठी एक दिन इत्थे गल करन डए ही, तो कहंदी ही पिता जी जदों उत्थे अफसर ही ना, उत्थे नौकर आउंदे ही, वो इन्हां दे भी बूट पालच कर जांदे ही, साडे भी कर जांदे ही, सानू बड़ा चंगा लगदा है। हुण तुसीं सोच के वेखो, ये चंगी गल है?
स्वार्थ है इस बात के पिछे कि सानू नहीं करना पैंदा, वो कर जाते बड़ा वधिया मौज बनी। समझण दे गल? अहीं सिੱਖਿਆ ही ਇਹੋ ਕੁਝ आसे पासियों सानू सिखाया गया है कि तुहाडे को नौकर चाकर होण, दूजे तुहाडा कहना मन्नण, दूजे इदां करन, दूजे इदां करन, पर तुसीं किदां दे होवो ये कोई नहीं सिखाउंदा। अहीं सारा कुछ इदां ही चुनिया है। तो उहदे च बड़े रौले ने। बंदियां दी दुनिया जिहड़ी पुरुषां दी दुनिया है उहदे च उन्हां नूं सारी उम्र इहो ही जोर ला के दिता जांदा कि किते जनानी दे थल्ले ना लग जी, है ना। ते बीबियां दी दुनिया च भी इहो जोर लाया जाता भी तू हर गल थोड़ी मन्नी दी होई दी है कि तेरी अपनी मर्जी भी चलाई दी है। सब आपो अपना जिहड़ा है वो राग लापण डे ने, आपो अपनी मत वंडण डे ने। हालांकि कदी ध्यान ना वेखोगे जिहड़ा मत देना आउंदा वो खुद भी सुखी नहीं हुंदा, वो खुद भी सुखी नहीं हुंदा, क्योंकि सुखी तो होना है। गुरु महाराज दे जिहड़े इस शब्द का उहदा स्वरूप है ना बड़ा प्यारा। इहदे च जिहड़ियां रमजां ने, इहदे च जिहड़ा महा ज्ञान का रस है उहनूं मान के, उहनूं पा के, उहदे तो बिना नहीं हो सकदी। ते जे पूरे नूं समझांगे कि पूरा है, कि जो भी है वो पूरा है, बस उन्हें पूरा रचिया है, इन्हें पूरे तक एक दिन पहुँचना है, यात्रा है, ये इहदी खेड है। तो फिर कदी दुखी नहीं होवोगे, कदी कोई गड़बड़ नहीं होएगी। आ जिहड़े गुरु ते शंका कर लेंदे, गुरु ते तर्क करदे, जां गुरु दे महाराज दे उत्ते जिहड़ा है वो अद्धी अद्धी गल लैके एक एक पंक्ति नूं अपनी मर्जी नाल, अपने स्वार्थ नाल जोड़ के जदों बयान करदे ते उहदे चों विवाद पैदा हुंदा। कई बार जिहड़े सिख दर्दी ने, जिहड़े सिख पंथ दे, वो कहणगे खालसा जी ये विवाद क्यों नहीं मुक्कदा? ते असीं हस के कहने कि मुक्कण वाली बात नहीं है। जदों मनुख गुरु नूं गुरु करके नहीं, पूरा जिहड़ा गुर है, पूरे गुर का सुण उपदेश है ना, वो पूरे गुरु नूं नहीं जानना, सिर्फ विचों एक पंक्ति लै लई, एक शब्द लै लिया, अपने मतलब नाल उहदे अर्थ कढ ले, क्योंकि तेरे जीवन नूं सपोर्ट करदे ने, तैनूं चंगे लगदे ने, बस तेरे जीवन की किसी धारा नूं ते किसी कर्म नूं सपोर्ट मिलदी है ना, बस इन्ना ही। तो फिर वो विवाद बनाउंदे ने। फिर एक एक पंक्ति लै लैंदा, दूजा दूजी पंक्ति लैके उहदे उल्ट चल पैंदा, क्योंकि तुसीं गुरु नूं की करदे ने, वो गुरु नूं अपने वास्ते रखिया उन्होंने कि मैं सच्चा है, आपको गुरु महाराज की पंक्ति इदां। सच्चाई तुहाडी किसी ने नहीं वेखनी, वो गुरु नूं पता है। वो आपे कंडा तोल तराजी, आपे तोलणहार, उन्होंने पता है, सब जानदा है। उतों किते उल्ला थोड़ी है, उन्होंने सब बातां पता ने। तुहाडे करन तो पहला उन्होंने पता ने कि इन्हें आ करना है। बात की है कि मैं सिख होना है, मैं उहदे तो सीखना है, मैं अपने आप नूं उहनूं भेंट करना है, जो मेरे सतगुरु कहंदे मैं उदां दा बनना है। ते वापस आइए उस प्यारे सतगुरु दे कुछ अजिहा स्वरूप ने जिहड़े अपने जीवन च संभाल के रखने ने। बस तुसीं सिर्फ इन्ना संभालण की कोशिश करियो कि पूरा है, तो उहदा जो कुछ भी कीता है वो पूरा है। मैं आसे पासे समाज की दुनिया तो कुछ अधूरा चुनदा हाँ तां दुखी हुन्ना। बस तो तुसीं हैरान होवोगे कि तुहाडी जिंदगी चों दुख उड़ जाणगे, दुख नहीं बचणगे, परेशानियां मुक जाणगियां। रहणगियां किवें? क्योंकि तुहाडी अधूरी चोण तो आउंदियां सी, तुहाडी स्वार्थ की चोण तो आउंदियां सी। वो अधूरियां ते स्वार्थी चोणां तुहानूं मंगता बनाउंदियां सी ते दूजे दी मोहताजी च पा दिंदियां सी। ते जिस दिन तुसीं वो रंग कमाया ते तुसीं अपने पिता वांगू बेमोहताजे हो जाना, तो फिर महारंग कटेगा। तो फिर तुसीं हैरान होवोगे कि जे पत्नी प्यार करदी सोहनी लगदी है तो फिर लड़दी भी बड़ी सोहनी लगनी। वो वखरी गल है कि तुसीं उत्ते दया करो तो उन्होंने कहो कि भलीए लड़िया ना कर, गुरु नानक नूं चंगी नहीं लगदी होएगी, है ना। मेरा जी करदा तू मेरे गुरु नानक नूं सोहनी लगे। तो पति का भी इदां ही है। समझ आई बात कि नहीं? सारे नूं कदी ध्यान ना देखियो, फुल ने ते कंडे ने, हर चीज़ नूं उन्हें दो रंगां च बनाया है। ये उहदी खेल, ते पूरा चुनिया कर, अधूरा नहीं।
फुल खिड़दे भी सोहणे लगन, फुल मरझाउंदे भी सोहणे लगन। जदों इहो जे किसे शरीर दे विच बच्चा जदों जन्मदा है ते उहदे च वो आप आके बह जांदा ते आके इस धरती ते आ जांदा। जे उदों ढोल वजाउंदे हो, उदों खुशी मनाउंदे हो कि आ गया अज फलाणे दे घर मुंडा बन के आ गया, अज फलाणे दे घर कुड़ी बन के आ गया। वैसे भी अधूरे दी बात है कि जिथे कुड़ी नूं नहीं स्वीकारिया जांदा ते मुंडे नूं स्वीकारिया जांदा। जिस दिन तुसीं स्वीकारन च आ गए, उन्होंने कबूलन च आ गए, जिस दिन उन्होंने तुसीं पूरा कबूलिया उस दिन हैरान होना। मुंडा आया तुसीं तां भी खुश होना, कुड़ी आई तुसीं तां भी खुश होना। तो जे अपाहिज आया ना, लूला लंगड़ा भी आया, तुसीं तां भी बड़े खुश होना। तो जिस दिन वो धरती तो गया इस शरीर नूं छड्ड के, तुहानूं उस दिन भी खुशी होनी कि जे ना आउंदा फिर की कर लेंदे। ये बहुत इस जिंदगी दे विच उन्हें बुरा कुछ नहीं बनाया, ये सब भला है। बस साडियां चोणां अधूरियां ने ते बिल्कुल बेफजूल ने। ते उस पूरे रंग नूं जिहड़ा है वो कबूले। ठीक है, चलो अज इन्ना की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु